Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Arihant Academy. My name is Meenakshi Shukla. I am going to represent the Mathematics department for the school section. As you all know, Divya sir has already taken two topics of algebra, that is linear equation in two variables and arithmetic progression. Today I am going to teach you another two topic of algebra, that is quadratic equation and probability. I'll help you, guide you so that you can attempt your CET papers, the questions in your CET papers easily. So let's start, students. Now, everybody, we are going to start with quadratic equations. The most important thing in quadratic equation is standard form. As you all can see, I have underlined it. The standard form of quadratic equation. It's ax square plus bx plus c is equal to 0. Everybody, here, the variable, the only variable here, there should only be one variable, students. Only be one variable. And the highest index of that variable should be 2. Quadratic equations are only in one variables and the highest index of that variable is 2. Here, in this standard form, a, b, c, that coefficients a and b, c should be real number. Everybody? And the most important part, that a should not be equal to 0. So there are 2-3 key points for the standard form that you have to remember. The first, what is the standard form? That is ax square plus bx plus c is equal to 0. Here the most important thing that you have to remember in exams, the highest index should be 2, first thing. Then your a, b, c, the coefficients are real numbers. It could be any number, no issues. And the most importantly, your coefficient a should not be equal to 0, kids. So these are the 3 key points for the standard form of quadratic equation. Now, as you all can see, every quadratic equations have 2 solutions. Normally, when you solve quadratic by factorization method, completing square method or formula method, you get 2 answers. So, therefore, every quadratic equation has 2 solutions. You have already learned that they are also known as alpha and beta, the roots of the quadratic equation. Everybody? So, for the standard form, just remember what is the standard form. Highest power should be 2 and a should not be equal to 0, because अगर a 0 हुआ तो आपका square जो highest power 2 का term है वही 0 हो जाएगा. Okay? Now, let's start with it, guys. हमने जो भी अभी तक पढ़ा standard form में, वो उसे हम apply करेंगे अभी questions में. Everybody? तो ये आपका पहला MCQ है. Everybody, let's see what it is. Which one is the quadratic equation? आपके सामने guys 4 options है. ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी, ये 4 ऑप्शंस हैं. आपको बताना है इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक है. एवरीबॉडी? नाउ इफ आई टेक ऑप्शन नंबर ए, here you have to remove the denominator. In order to that, you will multiply throughout with x. If you multiply throughout with x, it will give 3x, and x square when gets multiplied with it will give you x cube. Now यहाँ पे guys पहले ऑप्शन में सॉल्व करने पे x क्यूब मिलता है, और आप सब जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट इंडेक्स शुड बी 2, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इट्स रॉन्ग. एवरीबॉडी? नाउ I'll solve C. Now you can see in C there is no highest power 2. यहाँ पे अगर आप इसे शिफ्ट भी करोगे टू द लेफ्ट हैंड साइड, आपका हाईएस्ट पावर 2 है ही नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी इनकरेक्ट है. ऑप्शन नंबर डी, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी, अगेन द प्रॉब्लम इज, कैन यू सी व्हेन यू विल रिमूव दिस इट विल गेट मल्टीप्लाई एंड अगेन इट विल गिव यू अ क्यूब, एक्स क्यूब आफ्टर इट. Now guys, the correct option of this question will be B. This one. This is the correct option of this question. Everybody? I'll write it here.
Here when you multiply, you open the bracket, you will multiply your x inside. It will give you x square plus 5x. Your 2 will shift there, minus 2, and see, all other options have not given the correct standard form except option number B. Here you can see there is an highest power 2. Your value of a is 1. Bx is there, a c term is there, is equal to 0. So the correct option of this MCQ is option number B, because here you are getting x cube for this one. Here you are not getting, for option number C, you are not getting the highest power 2. Here you are going to get again x cube. Everybody? So only the option which represent the correct standard form in all 4 is option number B. When you open the bracket of option number B, it will give you your standard form ax square plus bx plus c is equal to 0. So everybody, let's move on to the second MCQ. Now, what it is written, if the quadratic equation 3x plus 1 upon x is equal to x plus 3 is written in the standard form, then there are 4 options, guys. You have to, this is already a quadratic equation, it is just not in standard form. आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद कंपेयर करके आपको ए बी सी का करेक्ट ऑप्शन निकालना है गाइस, ये चारों में से. तो लेट्स स्टार्ट विद इट. 3x प्लस 1 अपॉन x is equal to x plus 3. Everybody, now you have to remove your denominator x. Very simple, multiply your x throughout. So I'll multiply throughout with my x. I'll get 3x square if I multiply this with it. There is no need of multiplying it with 1, it will automatically get cancelled. When this gets multiplied, you will get x square, and when finally your x gets multiplied with 3, you will get plus 3x. Now let's shift it on left hand side so that we can make correct standard form. When I shift here, this one, plus x square will shift there and become minus x square. Then even 3x term will shift on your left hand side, plus 3x will shift there, becomes minus 3x, and plus 1 will remain as it is. Everybody, मैंने राइट हैंड साइड में सभी टर्म्स को शिफ्ट करके लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया है, राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 बचा. एवरीबॉडी, नाउ यू कैन सी 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. 3x स्क्वायर में से जब आप एक एक्स स्क्वायर माइनस करोगे तो यू विल गेट 2x स्क्वायर गाइस. एवरीबॉडी, कैन यू सी इट? सो मैंने इस क्वेश्चन को, ये जो आपका क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया. ये आपको आना चाहिए गाइस. एवरीबॉडी, आपको ये जो आपका डिनोमिनेटर, ये जो x है, ये मैंने कैसे सब लोगों से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड से शिफ्ट करके लेफ्ट हैंड साइड में लाया, एंड आई मेड अ करेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म. एवरीबॉडी, नाउ कैन यू सी कि ये कौन सा ऑप्शन है चारों में से? सी, ऑप्शन नंबर सी, दैट्स द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दैट इक्वेशन. वैसे गाइज ये क्लिक भी हो जाना चाहिए था बहुत जल्दी, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शंस में a का वैल्यू 3 है, और हमें पता है गाइस कि जब ये एक्स स्क्वायर टर्म वहाँ जाएगा तो वो 3x स्क्वायर से माइनस होगा और आपको 2x स्क्वायर ही मिलने वाला है. एवरीबॉडी, सो योर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. Okay, now guys, third MCQ. If one root of the quadratic equation px square minus 3p plus k is equal to 0 is 5, then the value of k is 0. अभी guys यहाँ पे ये आपका quadratic equation है, as you all can see. ठीक है. Now guys यहाँ पे क्या लिखा है? वन रूट. ऑलरेडी हमें एक रूट पता है कि उसका वैल्यू 5 है, हमें p की वैल्यू 5 पता है कि एक वैल्यू p की 5 है. हमने पहले स्लाइड में ही सीखा था कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ टू सॉल्यूशंस. तो इसमें से आपको एक सॉल्यूशन दैट इज़ 5 दिया हुआ है, एक वैल्यू p की 5 पता है. तो अगर ये सॉल्यूशन है तो इट विल सैटिस्फाई योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू 5 दी है, इस वैल्यू को आपको इस इक्वेशन में पुट करना है. पुट योर p इज इक्वल टू 5 इन द इक्वेशन. जैसे आप इसे पुट करोगे वैल्यू 5 को, आपको ऑटोमेटिकली आपका मिसिंग टर्म वैल्यू ऑफ k आपको मिल जाएगा समवॉट लाइक दिस. यहाँ पे आप पुट करोगे p स्क्वायर दैट इज़ 5 स्क्वायर, 3p दैट इज़ 3 प्लस k इज इक्वल टू 0.
So 5 square is 25. 3 5s are 15 plus k is equal to 0. Now 25 minus 15 will give you 10, and if I shift my k there, plus 10 will shift there and become minus 10. तो गाइज एवरीबॉडी इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी. ऐसे सम्स बहुत इजीली एग्जाम में पूछे जाते हैं जहाँ पे आपको एक सोल्यूशन एक रूट की वैल्यू दी होती है. जो भी वैल्यू आपको दी होगी वो वैल्यू आपको सिर्फ और सिर्फ आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है. आपका मिसिंग टर्म दैट इज वैल्यू ऑफ के ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ओके गाइज, लेट्स कंटिन्यू. नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर आप लोगों ने देखा मैंने आपको 3 MCQs करवाए. यहाँ पे आपको चेक करना था कि कौन सा क्वाड्रेटिक है या नहीं. यहाँ पे व्हेन यू हैव टू इट वाज ऑलरेडी क्वाड्रेटिक, आपको कंपेयर करके ABC की वैल्यू निकालनी थी. एंड द थर्ड टाइप ऑफ MCQ दैट वाज डिपेंडिंग अपॉन योर स्टैंडर्ड फॉर्म वाज व्हेन द वन रूट वाज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द मिसिंग टर्म दैट इज वैल्यू ऑफ k. अब गाइज हम सेकेंड टॉपिक पे चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. आपको याद होगा कि आपको फॉर्मूला मेथड था. आपको 3 टाइप के मेथड थे, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और फॉर्मूला मेथड, जिससे आप x का वैल्यू निकालते थे. उसी तरह गाइज दैट इट वाज अ फॉर्मूला टू फाइंड द सोल्यूशन एंड अ रूट. फॉर्मूला मेथड में हम यही फॉर्मूला यूज़ करते थे गाइज जो यहाँ पे लिखा हुआ, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. इस फॉर्मूले में जब आप a b c का वैल्यू कंपेयर करके सब्स्टिट्यूट करते थे तो आपको सोल्यूशंस मिलता था. ये आप लोगों ने एक्सरसाइज की है. यहाँ पे गाइज योर बी स्क्वायर माइनस 4ac, द टर्म विच इज इनसाइड द रूट, इट्स कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू. दिस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू. एवरीबॉडी, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू. इसे गाइज डेल्टा से भी डिनोट किया जाता है. ठीक है, आपको डेल्टा भी से भी इसे डिनोट किया जाता है. एवरीबॉडी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. कभी कभार आपको एग्जाम में सीधा MCQ में डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू बोलेंगे तो आपको ऐसे पूरा फॉर्मूला नहीं लगाना है. वो उसके लिए जब आपको सोल्यूशन बोलेंगे तब आपको ये यूज़ करना है. जब डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू बोलेंगे तो यू हैव टू जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac. एवरीबॉडी, ना इसी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो आप ढूंढते हो, उसी वैल्यू के ऊपर नेचर ऑफ द रूट डिपेंड करता है. एवरीबॉडी, वैल्यू या फिर पॉजिटिव आएगी या फिर नेगेटिव आएगी या फिर ज़ीरो आएगी. इन तीनों में से कोई एक ही इसका आंसर आएगा व्हेन एवर यू विल सॉल्व. तो गाइज इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर एक पॉजिटिव नंबर आए ग्रेटर देन ज़ीरो, देन द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल एंड अनइक्वल. एवरीबॉडी, अगर इसका वैल्यू आपको पॉजिटिव आए तो एक ग्रेटर देन ज़ीरो आए तो यू हैव टू राइट देयरफॉर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल एंड अनइक्वल. अगर सपोज इसका वैल्यू सॉल्व करने के बाद आपको ज़ीरो आई वो वैल्यू, ठीक है, तो नेचर क्या होगा, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द नेचर ऑफ द रूट? द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वुड बी रियल एंड इक्वल. कैन यू सी, अगर यहाँ पे अगर यहाँ पर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो रियल एंड अनइक्वल आपका नेचर होगा, और अगर आपको इक्वल टू ज़ीरो आया आंसर तो आपका नेचर होगा रियल एंड इक्वल. इन केस आपको एक नेगेटिव नंबर आंसर में आया सॉल्व करने के बाद, दैट इज इफ योर डेल्टा इज लेस देन ज़ीरो, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर ज़ीरो से कम आई तो देन द नेचर वुड बी नॉट रियल. दैट इज रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट रियल. गाइस, सेकेंड टॉपिक में हम लोगों ने यहाँ तक 2 बातें सीखी. वी हैव लर्नड हियर 2 थिंग्स. फर्स्ट, व्हाट आई टॉट यू वाज दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नथिंग बट डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू. इसे डेल्टा भी कहा जाता है. और सेकेंड स्लाइड में हमने सीखा कि यही बी स्क्वायर माइनस डेल्टा की वैल्यू पे नेचर डिपेंड करता है. अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है तो नेचर वुड बी रियल एंड अनइक्वल, इक्वल टू ज़ीरो है तो नेचर वुड बी रियल एंड इक्वल, और अगर उसकी वैल्यू लेस देन ज़ीरो है देन द नेचर वुड बी नॉट रियल. एवरीबॉडी, ना जो 2 टॉपिक हम लोगों ने किया अभी, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर, उसके ऊपर कुछ MCQs करते हैं. एवरीबॉडी, लेट्स स्टार्ट विद इट. पहला, द डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वेरी सिंपल. आपको यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट पूछा है. दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन
अब सभी को पता है कि डिस्क्रिमिनेंट यानी डेल्टा इज़ नथिंग बट बी स्क्वायर माइनस 4ac। एवरीबॉडी, तो इसके लिए सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालो। तो एवरीबॉडी, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट स्लाइड में रिवाइज किया था। दिस इज योर ए बी सी। सो वैल्यू ऑफ ए इज़ 3, वैल्यू ऑफ बी इज़ 2 एंड वैल्यू ऑफ सी इज़ -9। एवरीबॉडी, बच्चे अक्सर कुछ अगर मिस करते हैं तो वो नेगेटिव साइन है। याद रखो, अगर ए बी सी कंपेयर कर रहे हो तो अगर किसी टर्म को नेगेटिव है तो प्लीज़ ये नेगेटिव साइन को पिक करो। बच्चे अगर कहीं पर मिस्टेक करते हैं तो यहीं पे करते हो, तो प्लीज़ 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 टेक केयर ऑफ इट। नाउ यू हैव टू जस्ट डू फॉर दिस, यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड सब्सटीट्यूट हियर एंड यू कैन गेट इजीली योर डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू लाइक दिस, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू -9। एवरीबॉडी, सो 2 का स्क्वायर होगा 4, माइनस माइनस या साइन विल चेंज एज प्लस, 4 3s are 12। एवरीबॉडी, 4 3s are, so 4 3s are 12, 12 9s are 108. When you add it with 4, you will get a positive 112. Everybody, अभी अगर हम यहाँ पे ये साइन नेगेटिव नहीं लेते तो यहाँ पे मिस्टेक्स होने के चांसेस थे। तो जब आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ढूंढोगे तो कंपैरिजन में ध्यान रखो कि आपका ए बी सी तीनों का वैल्यू एग्जैक्टली करेक्ट है, ठीक है। देन आफ्टर दैट इट इज़ वेरी इजी, यू आर गेटिंग पॉजिटिव 112, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। एवरीबॉडी, सो इट वॉज वेरी ईजी गाइज। चलो गाइज, लेट्स मूव ऑन। नाउ गाइज, सेकेंड स्लाइड में सेकेंड जो क्वेश्चन है, जो हम लोगों ने नेचर और इसके ऊपर डिपेंड क्वेश्चन किया है, यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है नेचर ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरी सिंपल, मैंने आपको सिखाया कि नेचर डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट पे। तो अगेन बिल्कुल लास्ट एमसीक्यू की तरह आप इसे सॉल्व करोगे, आपके एबीसी की वैल्यू कंपेयर करके निकालोगे। वंस यू गेट द वैल्यू, आप फिर चेक करो कि आपके बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई क्या। सो लेट्स स्टार्ट विद इट गाइज। 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। Here your value of a is 9, b is minus 12 and c is plus 4. Everybody, so let's start with it. You have to find the value of b square minus 4ac. So it is minus 12 square minus 4 into a into c. Everybody can. So guys, let's continue. Minus 12 का square will be positive 144, 4 into 9 into 4, 4 4s are 16 and 16 9s are 144। इसे सॉल्व करने पे आपका आंसर आता है 0। मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है कि अगर आपका आंसर 0 आएगा तो वो रियल है, अनइक्वल है, इक्वल है या बोथ ए एंड बी है। तो यर इट विल बी बोथ ए एंड बी, रियल एंड इक्वल। देखो गाइज, यहाँ पे एक बार देख लेते वापस। आप देख सकते हो यहाँ पे अगर 0 होगा तो बोथ रियल एंड इक्वल दोनों है। एवरीबॉडी, रियल एंड इक्वल। तो सिर्फ इक्वल या अनइक्वल नहीं करना है आपको, रियल एंड इक्वल पूरा आंसर है। तो आपका रियल और इक्वल दोनों आंसर था गाइज, ये दोनों आपका आंसर था। तो इट वुड बी बोथ ए एंड बी। आपको रियल भी आंसर आ रहा है, इक्वल भी आंसर आ रहा है, तो योर करेक्ट आंसर वुड बी नॉट ए एंड बी, ऐसे दोनों टिक नहीं करना है एवरीबॉडी। आपका रियल आंसर होगा डी इज इक्वल्स टू बोथ ए एंड बी। ओके, नाउ एवरीबॉडी, द वैल्यू ऑफ के, नेक्स्ट क्वेश्चन MCQ, the value of k for which the quadratic equation has equal root is। यानी ध्यान से देखो, क्वेश्चन रीड करो बच्चों, क्या लिखा है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको यहाँ पे ये के की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये कितना है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे ये दिया है, दैट इज़ 4x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपको ऑलरेडी पता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू दैट इज़ डेल्टा की वैल्यू इक्वल रूट है ना, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू 0 होगी, ये पहले से मालूम है। और जब ये बात पहले से मालूम है इसलिए आपको एक मिसिंग टर्म के दिया गया। कैसे करेंगे गाइस? सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉर्मली लिखेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू 4,
b की वैल्यू k, c की वैल्यू 3. ओके, हमें ऑलरेडी पता है कि इस क्वेश्चन में इट हैज़ रियल रूट्स, रियल इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स. तो क्या होगा, देयरफॉर इक्वल रूट्स है ना, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 ही आएगी, रियल एंड इक्वल. ये हमें पहले से पता है. आपको कुछ नहीं करना है गाइज, ये वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, आपको ऑटोमेटिकली आपका के का वैल्यू आ जाएगा लाइक दिस, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी. एवरीबॉडी, के स्क्वायर इज के स्क्वायर. एवरीबॉडी, के स्क्वायर इज के का स्क्वायर विल बी के स्क्वायर. 4 इंटू 4 इंटू 3. एवरीबॉडी, 4 इंटू 4 इंटू 3 विल गिव यू 4 इंटू 4 इंटू 3 will give you 48. Now guys, how to do it? It's very simple. तो guys इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है. Now यहाँ पे guys everybody, हम इसे, आपको याद होगा आपने फैक्टराइजेशन मेथड में ऐसा सॉल्व किया था. यहाँ पे guys के स्क्वायर, ओके, आप ये 48 को अपने राइट हैंड साइड शिफ्ट कीजिए. -48 जब यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो वो हो जाएगा +48. नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, के का आंसर आएगा प्लस और माइनस रूट ऑफ 48. 48 होता है 12 4s. मैंने इसे एक परफेक्ट स्क्वायर में स्प्लिट किया है. 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. एवरीबॉडी, ठीक है. और वी कैन से, गिव मी अ मिनट, इसे परफेक्ट स्क्वायर में स्प्लिट करना है गाइस. एवरीबॉडी, वी कैन गो फॉर 16 3s. पहले मैंने 4 में स्प्लिट किया था गाइज, बट ये 16 में भी स्प्लिट होगा. 16 इज अ बिगर परफेक्ट स्क्वायर. एवरीबॉडी, 16 3s. 16 इज अ स्क्वायर ऑफ 4. सी एवरीबॉडी, सो आपके के का आंसर आया प्लस और माइनस 4√3. सो वेयर इज योर प्लस और माइनस 4 इज 2 3, दैट इज ऑप्शन नंबर 2. तो गाइज इस सम में हमें पहले से पता था कि क्वेश्चन को रियल एंड इक्वल रूट है, तो हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 लिया, वैल्यू सब्सटीट्यूट किया. यहाँ पे गाइज हम लोगों ने शिफ्ट करके राइट हैंड साइड में √48 लिया. बहुत बच्चे ये करने के बाद सोचेंगे कि ऑप्शन गलत है. आपको 48 को एक परफेक्ट स्क्वायर में स्प्रेड करना है, दैट इज 16 3s. ठीक है, और फिर 16 को बाहर लेके योर करेक्ट आंसर दैट इज 4√3 एंड -4√3. Everybody, so everybody, let's move on to the third topic of quadratic equation. इस यहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे. So let's start. If alpha and beta are the two root of the required quadratic equation, how to form a quadratic equation? यहाँ पे आपको quadratic, आपको रूट्स की वैल्यू पहले से पता कि what would be the value of your root. आपको अल्फ़ा और बीटा आपको दिया होगा ऑलरेडी, ये दोनों आपको गिवन होंगे. आपको क्या करना है, आपको इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है. सो हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट्स आर गिवन? सी, दैट इज x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट x, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा. आपको ये अल्फा बीटा को ऐड करना है, यहाँ लिख देना है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. सिंपल. आपको कुछ नहीं करना है गाइज. ये आपको क्या करना है, आपको अगर कोई क्वाड्रेटिक बनाना है, आपको अल्फा बीटा दिया है, तो सबसे पहले आप फाइंड करेंगे सम ऑफ रूट दैट इज अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट दैट इज अल्फा इंटू बीटा. वंस यू फाइंड बोथ द वैल्यूज, आपको ये फॉर्मूला पिक करना है. यहाँ पे x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जो भी वैल्यू होगी आप वो यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे. x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो होगी वो यहाँ इज इक्वल टू 0. Everybody, this is how you can form a quadratic equation when the roots are already given. Second point here, if one root of quadratic equation is a plus root b, then second root would be a conjugate pair.
एवरीबॉडी, अगर सपोज आपको सिर्फ अल्फा और बीटा में से सिर्फ अल्फा दिया, सपोज अल्फा इज गिवन 2 + √5 इस फॉर्म में, तो फिर बीटा कैसे मिलेगा मिस? आपने तो बोला था कि ये दोनों होगा गिवन, तभी हम क्वाड्रेटिक फॉर्म कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। नहीं गाइस, अगर सपोज कभी आपको सिर्फ अल्फा ही दिया हो तो बीटा उसका कॉन्जुगेट पेयर होगा। एवरीबॉडी, यही पॉजिटिव शिफ्ट होके नेगेटिव हो जाएगा। सी, कैन यू सी हियर एवरीबॉडी? इट्स वेरी इजी। तो अगर आपको दोनों एक साथ दिया है, वेल एंड फाइन, बट अगर कभी इन केस आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म करना है और आपको सिर्फ अल्फा दिया है, दैट इज 2 + √5, then you can easily find beta by a conjugate. Okay, let's do the sums on this. Now guys, can you see here, if the root of quadratic equation are -1 and 3, मैंने कहा था ना आपको रूट पहले से ही देंगे, तो दिस वुड बी योर अल्फा एंड दिस वुड बी योर बीटा। आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म करना है, सो लेट योर अल्फा बी -1 and your beta be +3. Very simple. Now what you have to do, you have to first find sum of root अल्फा प्लस बीटा। आपको अल्फा प्लस बीटा पहला फाइंड करना है। वेरी सिंपल, इट इज -1 योर अल्फा प्लस योर बीटा, दैट इज 3, विच विल गिव यू 2। एवरीबॉडी, देन अल्फा इंटू बीटा, दैट इज -1 इंटू 3, विच विल गिव यू -3। इट्स सो ईजी एवरीबॉडी। एक बार आपने फॉर्म कर लिया, अब आप अपने फॉर्मूले में डालो। क्या था वो, क्या फॉर्म करना था आपको, क्वाड्रेटिक कैसे करना था? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। सो कैसे करना है आपको? आपको अल्फा प्लस बीटा यानी कि ये जो 2 की वैल्यू है वो यहाँ पे डाल देनी है एवरीबॉडी, प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी ये जो -3 की वैल्यू है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। ये दोनों वैल्यूज आपने पहले से निकाल के रखा है। सो फाइनली यू आर गेटिंग दिस। कैन यू सी दिस? कौन सा ऑप्शन है ये? ऑप्शन नंबर 1 एवरीबॉडी। सो सी, इट इज़ सो ईजी। आपको क्या करना है, आपको अगर अल्फा बीटा दिया रहेगा तो आपको सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करना है एवरीबॉडी, दैट इज अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपको फाइंड करना है। देन जस्ट सब्स्टिट्यूट इट एंड फाइंड योर करेक्ट आंसर एवरीबॉडी। सो ये जो फर्स्ट थिंग जो हमने सीखी यहाँ पे, ये जो फॉर्मूला है गाइस, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे याद रखो कि अगर आपको कोई दिया होगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे प्लस, ठीक है everybody, just remember it and see you can easily use it. So let's continue with this. Now guys, everybody, I have covered all the quadratic points. What we talked in quadratic, we started with standard form. हम लोगों ने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में किया, दैट ax² + bx + c, उसमें a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, करेक्ट है। सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात किया। देन हमने डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac नेचर के बारे में बात किया, दैट द वैल्यूज आर, अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल एंड अनइक्वल, इक्वल टू 0 होगा तो रियल एंड इक्वल, एंड अगर नेगेटिव दैट इज लेस देन 0 होगा तो नॉट। एंड फाइनली आई टॉक्ड अबाउट द how to form a quadratic equation when your roots alpha and beta is given. Everybody, now guys, let's start with your second chapter, that is probability. इसमें भी हम कुछ key points discuss करेंगे so that you can easily give your paper in CET exams for this chapter. Everybody, let's start with it. सबसे पहले guys, can you see probability of an event is given by this formula. सभी को पता है, आपने सॉल्व किया है। बच्चों, आप अक्सर मिस्टेक क्या करते हो, इसे ऊपर लिख देते हो और उसे नीचे। तो याद रखो गाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज n of a अपॉन n of s, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट a, पहले वो लिखा जाएगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन योर सैम्पल स्पेस, दैट इज सैम्पल पॉइंट। एवरीबॉडी, इसमें अगर आपने पोजीशन, मैं देखा बच्चे अक्सर यहीं पे मिस्टेक करते हैं, तो प्लीज़ आप ध्यान देना कि आपको पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर इवेंट और उसके नीचे आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैम्पल स्पेस लिखना है। एवरीबॉडी, दैट्स द प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला। Second guys, everybody, a probability lies always between, the range of probability is from 0 to 1. आपको आप जब प्रोबेबिलिटी सॉल्व करते हो तो आप फ्रैक्शन में आंसर लिखते हो, अगर आप वो फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो इट विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1. एवरीबॉडी, आपका प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में ही आना चाहिए गाइज। ऐसे क्वेश्चंस आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, ऐसे एमसीक्यू हम करने वाले हैं जहाँ पे मैं आपको रेंज के बारे में बात करूँ, तो आपको याद रखना है गाइज, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी लाइज फ्रॉम 0 to 1.
एवरीबॉडी। सो यहाँ हमने फॉर्मूला देखा प्रोबेबिलिटी का, एंड साथ ही साथ वी टॉक्ड अबाउट द रेंज वेयर द प्रोबेबिलिटी आंसर्स वुड बी। नाउ गाइस, प्रोबेबिलिटी events, everybody, if value of probability of A is 0, आपको याद होगा हमें सेट चैप्टर में हमने एम्प्टी सेट सीखा है जहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं होती। प्रोबेबिलिटी सॉल्व करते समय कोई एक ऐसा इवेंट आ जाता है जहाँ पे n ऑफ a इज नथिंग बट 0, तो ऐसे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 0 आएगी। एवरीबडी, ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, तो इसे कहा जाता है देन A इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। द A इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। एवरीबडी, इसको एक्सप्लेन करने के लिए सपोज इफ आई टेक अ डाइस थ्रो, सो योर सैम्पल स्पेस वुड बी now if I take an event whose multiple is 7, multiple of 7, तो क्या इसमें कोई भी multiple of 7 है? नहीं, it's an empty set। everybody, empty set। तो ऐसे सेट का n of a would be 0, number of elements in set A is nothing, it's an empty set, it is 0। that's why guys, ऐसे सेट में जब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो आपको 0 ही आएगा। ऐसे सेट्स को कहा जाता है ऐसे इवेंट को कहा जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। एवरीबडी, सी आई हैव टॉट यू विद एन एग्जाम्पल। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हेन p of a is 1, I'll teach you with an example। suppose you understood this, I'll rub it। now suppose if I take another set, ठीक है, ऐसा सेट जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक नंबर लेस देन 7, if I take number less than 7 in this question, then all the elements of your sample space would be there in your event। so it would be 1, 2, 3, 4, 5, 6, all of them, everything in your sample space would be here। in that case your n of a would also be 6। so when you take a probability of such event, then the probability answer would be n of a upon n of s, that is 6 divided by 6 will come 1। तो ऐसे इवेंट जो एग्जैक्टली हमारे सैम्पल स्पेस जैसे ही सारे एलिमेंट्स एग्जैक्टली सैम्पल स्पेस जैसा सेम होता है, उस इवेंट को कहा जाता है श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। एवरीबडी, मैंने यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्पल्स दिए थे जहाँ पे एक ऐसा इवेंट था जहाँ पे इट वॉज एन एम्प्टी सेट, ठीक है, नथिंग वॉज देयर इन इट, 0, n of a वॉज 0। सो ऐसे टाइम पे अगर प्रोबेबिलिटी लोगे तो आंसर 0 आएगा, देन इट इज़ कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। एंड इफ इट इज़ एग्जैक्टली सेम लाइक योर सैम्पल स्पेस जैसा यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। एवरीबॉडी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट गाइस। एवरीबॉडी, यहाँ पे इफ S इज द सैम्पल स्पेस, A इज एन इवेंट ऑफ S एंड A डैश इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट A। सभी को पता है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। एवरीबॉडी, सो ऐसे क्वेश्चन में देखो गाइस, अभी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को नहीं पता है तो सपोज आई अगेन टेकन दिस, अगर सपोज आपका जो इवेंट है उसमें पॉइंट है 1 and 2, तो गाइस इसके कॉम्प्लीमेंट में इस इवेंट के कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, विच इज़ नॉट देयर इन ए, दैट इज A complement would be 3, 4, 5, 6. It's called complement, opposite of it. Everybody, A का complement, that's A dash. Everybody, तो अगर कभी आपको एक इवेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट भी मिला, अगर एक इवेंट है और उसका कॉम्प्लीमेंट भी है, दैट इज A dash is also there, complement of event A। तो अगर इन दोनों इवेंट्स की अगर आप प्रोबेबिलिटी ऐड करोगे, इवेंट की और उसके कॉम्प्लीमेंट की, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट इवेंट, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी ऐड करोगे तो उसका आंसर आएगा 1 ऑलवेज। ये हमें यूज़ होता है कई सम्स में। एवरीबॉडी, सो याद रखो कि अगर सपोज यू हैव एन इवेंट एंड यू हैव अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ऑल्सो, सो अगर आप दोनों प्रोबेबिलिटीज़ ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 1। यहाँ पे सेम वही किया है, जस्ट आई हैव शिफ्ट योर P of A on right hand side। so probability of an complement event is equal to 1 minus probability of event। एवरीबॉडी, सो ये स्लाइड में हम लोगों ने सीखा इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट। और अगर एक इवेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट सेट है, अगर एक इवेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट सेट है गाइज, अगर आपके एक इवेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट सेट है,
तो अगर दोनों की प्रोबेबिलिटी आप ऐड करोगे तो आपको उसका आंसर 1 आएगा। एवरीबॉडी वेरी क्लियर विद इट? सो लेट्स मूव ऑन गाइज। नाउ which of the following, the MCQ which is here, which of the following cannot be a probability of an event? मैंने आपको ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी का रेंज रिवाइज करवाया है, दैट इज फ्रॉम 0 to 1। वेरी सिंपल, चेक करो कौन 0 to 1 लाइन नहीं करता। बाकी सब 0 to 1 में हैं सिवाय इसके। यहाँ पे गाइज डिनोमिनेटर इज 2, तो आंसर वुड बी समवॉट 3.5। 3.5 would be the answer. Everybody, which is not in between 0 to 1. बाकी आप यहाँ पे सॉल्व करके देखो, आपको सब जगह सारे डिनोमिनेटर्स न्यूमरेटर्स से बड़े हैं, तो आपको सब में 0, 0.0.0 से ही स्टार्ट करना है एक्सेप्ट बी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एन प्रोबेबिलिटी? दिस वन, बिकॉज इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई नहीं करता। एवरीबॉडी, सो वेरी सिंपल गाइज। Okay, now again a very fantastic sum guys. There are 4 boys and 3 girls. There are 4 boys and 3 girls. If a group of 2 is formed, find the number of sample point. ठीक है, हमें गाइस 2 का ग्रुप बनाना है, तो सबसे पहला काम वील जस्ट 4 बॉयज़ को हम कंसिडर करेंगे B1, B2, B3, B4 और 3 गर्ल्स को लेंगे G1, G2, G3। आपको इस क्या करना है, ग्रुप ऑफ 2 बनाना है, आपको किसी 2 बच्चों का ग्रुप बनाना है गाइस, बहुत इजी है। सो ये सैम्पल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट में आपके सैम्पल स्पेस स्टार्ट कैसे होगा, सभी लोग यहाँ पे देखो। आपको क्या करना है, आपको एक बच्चा पिक करना है और उसको सबके साथ पेयर करते चले जाना है। सो आई विल स्टार्ट विद B1, ठीक है, आप उसको सबके साथ गाइस पेयर करो। सो पहला B1 का पेयरिंग होगा B2 के साथ, देन B1 विल गेट पेयर विद B3 जैसा मैंने बताया है, देन B1 विल पेयर विद B4, देन B1 विल पेयर विद G1, सिंपल, देन B1 विल पेयर विद G2 एंड देन B1 विल पेयर विद G3। यहाँ पे मैंने गलती से 3। एवरीबॉडी, सो आपने क्या किया, आपने B1 को लिया और उसे सभी बच्चों के साथ पेयर किया, तो आपने B1 का ग्रुप हर बच्चे के B1 को हर बच्चे के साथ ग्रुप में कर दिया है। अब गाइस सेम आप स्टार्ट करोगे B2 के साथ। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है बच्चों कि पेयरिंग पीछे नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट पेयर अहेड ऑफ देम, क्योंकि अगर आप B2 को पीछे पेयर करोगे तो नहीं चलेगा। 2 बच्चे हैं मीनू एंड सोनू, अगर मैं मीनू सोनू बोलूँ या सोनू मीनू बोलूँ बात सेम होता है गाइस। तो अगर आप B2 को B1 के साथ वापस ऐसे ये नहीं करना है, ये नहीं करना है वापस से, क्योंकि ऑलरेडी आप ये पेयर बना, तो आपको बच्चों के आगे हमेशा आपको आगे बनाना है। एवरीबॉडी, आपको आगे बनाना है। एवरीबॉडी वेरी क्लियर विद इट? तो जब आप B2 लोगे तो आपको उसके आगे पेयर करना है गाइज, लाइक दिस। B2 विल पेयर फर्स्ट विद B3, देन B2 विल गेट पेयर विद B4, then B2 will go for G1, then B2 will go with G2 and then finally B2 will go with G3। तो इस तरह गाइस आपने B2 की पेयरिंग उसके आगे जो बच्चे हैं उसके साथ कर दी। नाउ द सेम यू हैव टू गो विद B3। एवरीबॉडी, सो आई स्टार्ट विद B3 का फर्स्ट पेयर बनेगा B4 के साथ, उसके आगे जाना है आपको, उसके आगे। एवरीबॉडी, देन B3 विल बी विद G1, then B3 will be with G2, then B3 will be with G3। Everybody, then उसके बाद B4 का पेयरिंग G1 के साथ, उसके आगे B4 का पेयरिंग G2 के साथ, B4 का पेयरिंग G3 के साथ। तो ये B4 की भी उसके आगे आगे पेयरिंग हो गई। अभी लेट्स टेक G1 का पेयर होगा G2 के साथ एंड G1 का पेयर होगा G3 के साथ, एंड देन फाइनली लास्ट में G2 का पेयर होगा G3 के साथ। G3 का पेयर वो लास्ट है, उसके आगे कोई बच्चा नहीं है, उसके पेयरिंग्स ऑलरेडी हमने कर लिए। तो एक बार वापस बता दूँ कैसे करना है गाइस। सबसे पहले तो आपको 4 बॉयज़ और 3 गर्ल्स को इस तरह सिम्बलाइज करना है, B1, B2, B3, B4, G1, G2, G3। उसके बाद आपको एक बच्चे को लेकर उसके सभी बच्चों के साथ पेयर करते चलना है इस तरह।
Everybody, now you count how many points are there. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21. See, option number A. ठीक है, तो वेन एवर इट कम्स इन MCQs गाइज, आराम से, कोई घाई नहीं है, आप पहले ले लो। पेयर करते समय सिर्फ इतना ध्यान रखना कि आप एक कमेटी बना रहे हो 2 बच्चों की, तो आपको हमेशा उस पर्सन के आगे पेयर करना है। Everybody, so your sample point is 21. See, this is everybody. Let's move on. If 2 coins are tossed, then the probability of getting at most 1 head is. सबसे पहले तो guys, what is when you toss 2 coin? What would be the sample space? It would be HH, HT, TH, TT. 2 coin है, ठीक है। आपका N of S would be 4, करेक्ट। अभी क्या बोला है गाइस, एट मोस्ट। आपने 2 वर्ड्स नॉर्मली आप सुनते हो, एट लीस्ट और एट मोस्ट। एट मोस्ट मीन्स कम से कम एक हेड होना ही चाहिए। फर्स्ट एंड मोस्ट एक हेड, तो आप बता सकते हो कि एक हेड किधर है यहाँ पे। कैन सी, एक हेड, एक हेड। इन दोनों ऑप्शंस में ऑलरेडी इन दोनों ऑप्शंस में ऑलरेडी एक हेड है। पर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एट मोस्ट, यानी एक हेड कम से कम, यानी उससे अगर नीचे भी होगा, यानी नो हेड भी रहेगा, दैट इज TT, उसको भी लेना है। एवरीबॉडी, एट मोस्ट मीन्स आपको जो भी वैल्यू दी रहेगी दैट इज़ 1 हेड, वो तो लेना ही है। और उससे अगर कोई नीचे है, जैसे 1 हेड से नीचे होता है नो हेड, तो आपको वो भी लेने की। एवरीबॉडी, सो आपके इवेंट में ये 1 हेड के ये दोनों आ गए जैसा पूछा था, और एट मोस्ट यानी 1 से भी नीचे दैट इज नो हेड, दैट इज TT। एवरीबॉडी, एंड योर N of A is 3, and if you find your probability would be N of A upon N of S, जैसे हमने फॉर्मूला डिस्कस किया है, दैट इज 3/4, ऑप्शन नंबर A। कैन यू सी इट? ओके, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times. What is the probability of getting a coin is tossed 3 times? 3 times. Everybody, यहाँ पे 2 coins are tossed, 2 टाइम हुआ था, यहाँ पे 3 टाइम है गाइस, तो 3 टाइम है। H H H, what how I do? T T T, वेरी सिंपल। पहले मैं क्या करती हूँ कि HH या T लिख लेती हूँ। फर्स्ट दिस 2, इट्स वेरी सिंपल टू रिमेंबर इन दिस वे। आई टेल यू, अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और गड़बड़ कर देते हैं। So I'll teach you. It's very simple guys to remember. So first what I do, all 3 coins I take H, and all 3 coins I take tail. Everybody, now what I'm going to do is, मैं आपका H जो है ना वो position to position, coin to coin घुमाऊंगी। For example, first I'll take H has a first coin, ठीक है, and the 2 will be T. Then I'll take H in the second coin, and finally I'm going to take H in a third place. Can you see, यहाँ पे ये तीनों में मैंने H को फर्स्ट कॉइन, सेकंड कॉइन, थर्ड कॉइन ऐसे रोटेट किया, जिससे आपको याद जल्दी अंडरस्टैंड, आपको याद रहे, आप कंफ्यूज ना हो जाए। एवरीबॉडी, नाउ सिमिलरली गाइज आई एम गोइंग टू शिफ्ट T ऑल्सो। पहला T वुड बी इन योर फर्स्ट प्लेस, then T would be on your second coin place, and finally lastly your T would be in third. This is a very easy way how which I use when I go for a coin is tossed for 3 times. So first all 3 are H and all 3 are tail, then I'm going to shift my H on all the places, and then I'm going to shift my tail also on all the places. So this was the easy way which I did, so I really wanted to share with you all. So 8. Now let's see what probability we have to find. So what it is, getting at least 1 head, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने आपको एटमोस्ट का मतलब सिखाया था इस स्लाइड में। एटमोस्ट मतलब आपको कम भी लेना है, यानी कि ये जो 1 हेड है ये 1 हेड से आपको कम भी लेना है। अभी यहाँ पे एटलीस्ट है। अभी एटलीस्ट क्या होता है गाइस, एटलीस्ट क्या होता है, वो वैल्यू से आपको ज़्यादा भी लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम। एवरीबॉडी, सो सबसे पहला काम, आप एक काम करो, पहला तो ये 1 हेड जहाँ जहाँ है ना वहाँ ले लो। इन 8 सैम्पल पॉइंट्स में जहाँ जहाँ आपको 1 हेड मिलता है, अभी किधर 1 हेड है, यहाँ पर है, देन यू विल हैव 1 हेड हियर, देन यू हैव 1 हेड हियर, ओके। नाउ इन ऑल दिस 3 जो अंडरलाइन, लकीली अंडरलाइन वाले ही आ गए,
then all the three has one head. Can you see it? First point, second point and third point. Now what is the meaning of at least? It's maximum. More than one. More than one is how much head? Two head. More than one is how much head? Two head. Now find two head for me. See this three. That is THH, HTH and HHT. यहाँ पे guys ये two head है. More than two head is three head. H H H. मिस more than three head नहीं हो सकता बच्चों. Three coin tossed है. ज़्यादा से ज़्यादा तीन head हो सकते हैं. तो गाइज यहाँ इस इवेंट में मैंने क्या लिखा है? एटलीस्ट वन हेड, मतलब मैंने वन हेड जहाँ पे था वो तो लिया ही. वन हेड से ज़्यादा, मोर देन वन, दैट इज़ टू हेड. आई हैव टेकन दैट टू हेड ऑल्सो, एंड देन मोर देन टू हेड, दैट इज़ थ्री हेड. यू हैव टू टेक एवरीथिंग विच इज़ मोर देन दैट नंबर. एवरीबॉडी. सो बेसिकली एट मोस्ट मीन्स लेस. द नंबर विच इज़ गिवन, उससे जो कम होगा, मिनिमम होगा, वो भी लेना है, और एटलीस्ट में उससे ज़्यादा वाला भी लेना है. तो आपका ए का, एन ऑफ ए का आंसर होगा 7. एंड व्हेन यू विल फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर दिस, you should be n of a upon n of s. मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है. दैट इज ऑप्शन नंबर ए. एवरीबॉडी सी इट. तो यहाँ दो स्लाइड में मैंने आपको एट लीस्ट और एट मोस्ट ये दोनों क्वेश्चंस को रिवाइज करवाया. तो याद रखो गाइस, एट लीस्ट मतलब मिनिमम, दैट इज कम, जो नंबर दिया होगा उससे कम में जाना, और एट लीस्ट में आपको उससे, एट मोस्ट में आपको कम में जाना है, एंड एट लीस्ट में आपको उससे ज़्यादा जाना है. एवरीबॉडी. सो ऑप्शन नंबर बी. Now guys, if the two dice are rolled together, find the probability of an even number on both the dice. आपको पता है ना कि आप 1 1 1 2 1 3 ऐसे बनाकर आपको 36 बनाना है. You all know when two different dice are rolled, then your sample space would be 36. ठीक है? Your sample space would be 36. That is 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. Then we go for 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6. तो guys आपको उसमें से कौन सा वाला पिक करना है? क्या लिखा है, पढ़ो. If the two different dice are rolled together, find the probability of getting even number on both. यानी कि जैसे even number दोनों पे चाहिए, जैसे कि 2 2, यहाँ पे दोनों even नंबर. तो गाइस कैसे शुरू करने का? वेरी सिंपल. सबसे पहला जो होता है वो होता है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. इसमें से कुछ भी नहीं आने वाला है गाइस, क्योंकि अगर आप 1 के साथ कुछ भी लो, 1 इज़ ऑड. तो ये फर्स्ट जो लाइन होती है आप जो लिखते हो वो तो आएगा ही नहीं. ठीक है. सो ना जो आपका सेकेंड लाइन होता है सैम्पल स्पेस में, दैट इज़ 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6. तो उसमें से हम कौन सा पिक करने वाले हैं? 2 2. 2 1 में 1 इवन हो जाता है. 2 3 में भी 1 ऑड हो जाता है. सॉरी, 2 3 में भी 3 ऑड हो जाता है. दैट इज़ 2 4. सारे इवन वाले उस लाइन में पिक करने गाइस, लाइक दिस. ठीक है. बाद में जो नेक्स्ट आपकी थर्ड, जो आप 3 से बनाते हो सबको, तो वो भी 3 इज़ एन ऑड नंबर, तो 3 वाली लाइन पे नहीं चलेगी. 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 में इनमें सब में 3 इज़ एन ऑड नंबर, उसके साथ पेयरिंग हुई है तो नहीं होगा. नेक्स्ट द लाइन इज़ 4 4 1 4 2. तो 4 1 won't be taken. 4 2 4 3 not be taken because 3 is odd. 4 4 and 4 6. Then again the next 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 not be taken. It would be 6 2 6 4 6 6. Everybody. So here I have taken all that pair which has even number on your both die. सारे even numbers के लेके रखे. Everybody, can you see? So count 1 2 3 4 5 6 7. Sorry. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. N of A is 9. So what would be the probability, guys? What would be the probability? N of A upon N of S. That is 9 upon 36. Everybody? 4. That is option number D. See? Very new sums, guys. Very nice sum where you have to take that sample point which has even number on both the time. सो जो भी ऑड नंबर होगा वो आपको नहीं लेना है, सारे इवन नंबर वाले पेयर करने. कैन यू सी? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस.
A card is selected from a deck of 52. So if a card is selected from a deck of 52, your n of s would be 52. Let's see what the question says further. The probability of being a red face card. तो guys, पूरे डेक में, पूरे पैक ऑफ कार्ड में कितने फेस कार्ड होते हैं? 12. इफ़ यू ऑल रिमेंबर, कितने फेस कार्ड होते हैं? 12. 12 में गाइस 3 फेस कार्ड्स आर ऑफ हार्ट, 3 फेस कार्ड इज ऑफ डायमंड, 3 फेस कार्ड इज ऑफ क्लब, and lastly 3 face card is of spade. Now you all know that this is red color and this is black. Everybody, so 12 फेस कार्ड में 6 फेस कार्ड जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं और 6 ब्लैक के. एवरीबॉडी, तो जब इन्होंने बोला है रेड फेस कार्ड, दे हैव स्पेसिफाइड द कलर दैट इज रेड फेस कार्ड. एवरीबॉडी, सिर्फ रेड वाले चाहिए, तो गलती से भी पूरा 12 मत लिख देना गाइस. ओनली रेड फेस कार्ड, दैट इज 3 ऑफ हार्ट, 3 ऑफ डायमंड, दैट इज n of a would be 6. 3 card of heart and 3 card of diamond. Everybody, so finally p of a would be n of a upon n of s, that is 6 upon 52. 2 3s are, everybody, 52, sorry, 2 3s are 226. So the option is 3 upon 26 for a red face card. Everybody, 2 3s are and 2 26. Okay guys, understood? So याद रखो कि whenever it is a face card, don't jump directly and write 12. So you have to check whether they are talking about a red face card or a black face card or they are telling overall face card. ठीक है, तो अगर red होगा तो सिर्फ 6 आएगा, black होगा तो 6 आएगा, और अगर दोनों बोला रहेगा तो 12 आएगा, डिपेंडिंग अपॉन योर क्वेश्चन. एवरीबॉडी, सो गाइस नेक्स्ट MCQ वेरी सिंपल. आपको ये MCQ गाइस टोटली फॉर्मूले पे डिपेंड करता है. क्या दिया हुआ है? इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज़ 1/5, n of s, that is number of sample point, is 20 and find n of a. गाइज अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ a का फॉर्मूला यूज़ करूँ तो इट वुड बी n of a upon n of s, करेक्ट? just place the values, you will get probability of a is given as 1/5. Simple. n of a हमें find करना है, leave it, and n of s is 20. Go for cross. So simple. 20 into 1 is 20. n of a, I'll if I give me a minute. Everybody, now just multiply this there. It would be 20 divided by 5, that is n of a. 1s are 4s are, n of a का वैल्यू आया 4. सी, सो सिंपल. सो अगर कभी फॉर्मूला रिलेट, अगर आपको कभी प्रोबेबिलिटी या सैम्पल पॉइंट दिया हो और अगर इवेंट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर इवेंट अगर ये पूछा हो तो जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी, यू विल गेट द आंसर. Everybody, so here guys we have revised whatever we did in probability, we revised it. हम लोगों ने probability में definition किया, probability का range किया, impossible sure event किया, very important complement event का probability का formula revise किया. Then we revised range के ऊपर एक sum किया था हम लोगों ने. यहाँ पे मैंने आपको बताया how to make a group of 2 people, committee, कभी पीछे नहीं देखने का. एवरीबडी, देन एट लीस्ट एंड एट मोस्ट के ऊपर हमने सम किया. एट मोस्ट मीन्स लेस, एंड एट लीस्ट में आपको वो अगर 1 दिया है तो 1 से ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा आपको लेने का है. देन वी डिस्कस्ड अबाउट 2 die, हाउ द इवन नंबर्स विल कम, एंड देन फाइनली आई गॉट विद द डेक ऑफ कार्ड वेयर आई एक्सप्लेन यू हाउ द फेस कार्ड्स आर बिटवीन रेड एंड ब्लैक, एंड देन फाइनली वी डिड अ स्मॉल सम ऑन द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी. Everybody, so here I have revised everything of both the chapter guys. So thank you very much students. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब on our Arihant YouTube channel. All the best students for exams.
you.